Hello, my dear student of Standard Ninth. Welcome back once again. And today in this session, we are going to continue with our chapter number 7 Post Independence India. Friends, yesterday we had seen and that कि कैसे इंडिया आज़ाद होता है, how it gets free, what are the problem we are facing regarding the constitution and merging of all the princely state. Then we see Sardar Vallabhbhai Patel and his secretary VP Menon completed all the task of merging the state. Only three state are the exception, where Junagadh, uh, you can say Hyderabad and Kashmir matters we already discussed in our first part. Now today we are going to see that our constitution is also prepared, and the only thing is that नाउ द ब्रिटिशर्स हैज़ गॉन, बट अब अभी भी हमारी कंट्री में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फ्रेंच एंड पोर्टुगीज लोग अभी भी अपना किंगडम इस्टेब्लिश करके बैठे हैं एनी हाउ. सो वी हैव टू सी देम ऑल्सो. सो मर्जर ऑफ फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कॉलोनीज. इंडिया एमर्ज एन इंडिपेंडेंट एंड द सोवरेन स्टेट ऑन जनवरी 26, 1950. इस डेट को हमारा कंट्री एक रिपब्लिक बन गया था. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली में फॉर्म्ड हो गया था. हमारा कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका था विद डेमोक्रेटिक वैल्यूज. बट सर्टेन कॉलोनीज ऑफ द फ्रेंच एंड पोर्टुगीज रूल्स वेर स्टिल अंडर देयर कंट्रोल. There are some places in our country which is still governed by the French and the Portuguese. Union of the India appealed the French control Pondicherry and Portuguese control Diu Daman and Goa to merge with India. इंडिया की गवर्नमेंट ने इन गवर्नमेंट से नेगोशिएशन किया कि वो लोग आपके पड़ोसी चले गए हैं तो आप इधर क्या कर रहे हो. नहीं हाँ, आपको भी चले जाना चाहिए. वेल ठीक है, अब देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं. पीपल ऑफ दिस कॉलोनी वांटेड टू डेस्परेट टू ज्वाइन द यूनियन ऑफ इंडिया. एंड यहाँ पे जो लोग थे ये इनका भी यही सोचना था कि हम लोगों को भी सिंस इंडिया के अंदर भी मर्ज हो जाना चाहिए. तो यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया होगा. They started vigorous movement for this purpose. As I told you, the French tried to suppress this freedom movement. In the mammoth meeting organized at Pondicherry, people gave French government "Hind छोड़ो, leave India" slogan. So बातचीत का दौर शुरू होता है एंड पब्लिक बाय द टाइम एक नारा दे चुकी थी हिंद छोड़ो यानी लीव इंडिया. ओके बेल बज चुकी है. एनी हाउ द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड नेगोशिएशन फॉर पीसफुल सोल्यूशन ऑफ द पौंडीचेरी इशू विद द फ्रेंच गवर्नमेंट, बट द पीपल वेर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. In Yanam, People Liberation Army had taken over the administration in the hands on June 13, 1954. The French government realized the people race was compelled to start the negotiation with the Indian government. All the French colonies, Karaikal, Mahe, Yanam, Chandranagar, were handed over to India for further reconstruction. That is on 31st October 1954. And further, they were taken under the Union territory. वेल मीन वेल इससे पहले बातचीत ज़्यादा बढ़ पाती. यनम के लोगों एक ग्रुप फॉर्म किया पीपल लिबरेशन आर्मी एंड उन लोगों ने 13 जून 1954 को सारा कंट्रोल अपने हैंड में लिया. कहीं ना कहीं फ्रेंच गवर्नमेंट जानती है कि पब्लिक की ये डिमांड है तो ज़्यादा मगजमारी करनी भी ज़रूरी नहीं है. सो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से बातें शुरू की और जितनी भी उनकी टेरिटरीज थी चुपचाप पीसफुली इंडिया को हैंड ओवर कर दिया ऑन 31st October and 1954. ओके. Okay, there is one paragraph also remaining. With the reconstruction of the Indian state, Pondicherry had Karaikal in Tamil Nadu, Mahe in Kerala, Yanam in Andhra Pradesh, Chandranagar in West Bengal, Pondicherry in the administrative center of all these territories. तो ये फ्रेंच गवर्न टेरिटरी हैं और इंडिया के कौन से स्टेट्स में डेट डिटेल इज गिवन टू यू. फ्रेंच वाले लोग तो मान गए. व्हाट अबाउट द पोर्टुगीज? लेट अस सी पोर्टुगीज वालों के साथ क्या होता है. Meanwhile, merger of Diu, Daman and Goa. 15th August 1947, political leaders of the Satyagrahis entered into Diu, Daman and Goa. In free Goa agitation, thousands of volunteers died. As attempt as a negotiation, persuasion and satyagrah proved to be unsuccessful, Indian government decided to bring Operation Vijay to liberate Goa. देखो 15 अगस्त 1947 के दिन एक गोवा के लोग भी अब यही चाहते हैं कि उनको भी पोर्टुगीज से आज़ादी मिल जाए.
For that, they had started the movement Free Goa Agitation, and in which many people had lost their lives. Since Indian government tried to do lots of negotiation with the government, but Portuguese people, they don't believe in negotiation, and they straight away rejected our proposal. जब गवर्नमेंट को लगा कि नेगोशिएशन से कुछ हो नहीं रहा है, देन दे डिसाइडेड टू लॉन्च ऑपरेशन विजय. ऑपरेशन विजय का मकसद है टू लिबरेट गोवा. अब ऑपरेशन विजय में देखते हैं क्या होता है, विजय मिलती है या नहीं मिलती है. On the midnight of that December 19, the governor of Portuguese, De Silva, surrendered to the Indian government, and the Indian army captured Goa, Daman and Diu and hosted the Indian national flag there. Thus, the remains of the last Western rule disappeared from India. Friends, मिडनाइट दिसंबर 19 को हम लोगों ने ऑपरेशन लॉन्च किया, एंड फाइनली जो गवर्नर थे गोवा के पोर्टुगीज साइड से, डिसिल्वा, उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के सामने सरेंडर कर दिया. एंड अब वहाँ पे पोर्टुगीज की जगह इंडियन फ्लैग शान से लहरा रहा है. एंड जो लास्ट यूरोपियन थे वो भी चले गए. देखो 1498 में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट यूरोपियन भी पोर्टुगीज थे और लास्ट यूरोपियन भी पोर्टुगीज थे. सो दिस इज हाउ पोर्टुगीज रूल के. पोर्टुगीज सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट तक रहे. ओके, सो इट इज़ नॉट एक्चुअली ब्रिटिशर्स जो लंबे टाइम तक इंडिया में रहे थे, इट इज़ द पोर्टुगीज जो ज़्यादा टाइम तक इंडिया में रहे थे. नाउ लास्ट फोर्थ लाइन. ऑन 12 मार्च 1962 गोवा, दादरा, नगर हवेली, दमन, दीव were merged with the Indian Union. These states were known as the Union Territories. And on 30th May 1987, Daman and Diu were separated from Goa. After the Disalva made the capital of Dadra, Nagar Haveli, Daman was made the capital of Diu and Daman, and Panaji is the Panji भी कुछ लोग बोलते हैं, Panji was made the capital of Goa. So इस तरह से स्टेट्स के पहले यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किए गए, एंड देन हमने उसको स्टेटहुडशिप का टैग दे दिया. ओके, नाउ अब बात आती है फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट. देखो हमारे कंट्री में से हम लोगों ने सारे फॉरेनर्स को हमने भगा दिया है. सिंस अब हमको बनाने हैं स्टेट्स. एक तो कंट्री पहले से इतना कॉम्युनल राइट्स देख चुका है, तो ऐसा ना हो कि कहीं स्टेट के टॉपिक के भी लोगों के बीच में कुछ इश्यूज आ जाएं. तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही संभल के स्टेप्स ले रही थी. मीनवाइल इन लोगों ने कुछ जो स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, उनको पहले तो उन लोगों ने कैटेगराइज किया. कैसे किया, लेट्स सी. इंडिया became independent on acquired information about the unification of the princely state. Instead of accepting the unitary system, we had to accept the union system of the governance. Therefore, the issue of the formation of the reorganization of the constituent of the union occurred. The erstwhile British province and princely state were divided into 4 divisions and their unification merger. अब देखो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स दिया हुआ है, एंड ये 4 कैटेगरी में, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी. क्लास ए में वो स्टेट्स आते हैं जो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर में थे. दे वेर आसाम, मुंबई, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल इंक्लूडेड. क्लास बी में वो स्टेट आते हैं जो मतलब जो राजा थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर रहे थे. इनडायरेक्टली यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ही रूल था. तो वो स्टेट थे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, सौराष्ट्र, तवनकोर, कोचीन एंड पेप्सू, जो मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट ऑफ यूनियन. क्लास सी में छोटे मोटे जो राजा थे वो सब आते हैं, अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, बिलासपुर, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर एंड क्लास 4 में आपको मिलेंगे आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वेर इंक्लूडेड. आई डोंट नो यहाँ पे लक्षद्वीप क्यों नहीं है. एनी हाउ, चलो मे भी उस टाइम पे नहीं रहा होगा. नाउ इंटरेस्टिंगली ऑल स्टेट्स ऑफ ऑल द 4 क्लासेज डिड नॉट हैव द इक्वल स्टेटस. सबकी मतलब अब सारे जो किंगडम थे उन सबके अपने अपने अलग अलग स्टेटस थे. कोई बहुत बड़ा किंगडम था, कोई बहुत छोटा किंगडम था. However, they were inseparable parts of India. But since they are the part of India,
In this way, when the Constitution of India came into force, India was a union of these states. इंडिया इन सारे स्टेटों की यूनियन है. However, this proved to be temporary arrangement. और ये जो हमने क्लासेस बनाई थी ये हमने थोड़ा टेम्पररी पर्पस के लिए बनाई थी. Thereafter, demand of reorganization of the states and linguistic basis started becoming strong. फिर एक तरह से मतलब लैंग्वेज के बेस पे से स्टेट बनाने की मतलब डिमांड होने लगी. इन 1953 जवाहरलाल नेहरू कंसिडर द इशू ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड अपॉइंटेड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी. तो स्टेट को अच्छे से फॉर्म किए जाए इसके लिए उन्होंने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई. अब इस कमेटी को कौन लीड करेगा? वेल, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस फैजल अली वॉज अपॉइंटेड एज इज चेयरमैन. तो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस थे जस्टिस फैजल अली एट ए टाइम, तो उनको इस कमेटी का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट का हेड बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया. द अदर टू मेंबर ऑफ द कमीशन वेर मिस्टर हृदयनाथ कुंजरू एंड मिस्टर के एम पानीकर. ठीक है, के एम पानीकर KAR अगर सरनेम में आता है तो दे आर फ्रॉम द महाराष्ट्र इटसेल्फ. रिमेंबर माई वर्ड्स. This commission asked all the state submit the recommendation through various public opinion, views and through the postal interaction. इस स्टेट ने मतलब सभी लोगों को बोला कि अपने अपने सुझाव भेजो, लोगों से डिस्कस किया. ठीक है, ताकि आगे कोई कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना हो. Above all, the bilingual Mumbai state was formed, in which Maharashtra and Gujarat and Saurashtra were included, and Mumbai was made the capital of this state. And finally, making the changes in the constitution, reorganized the state was passing and implementing from 1956. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सजेशन कैसे आ रहे थे कि उस टाइम पे बॉम्बे नाम का स्टेट था, टुडे उसका नाम आज मुंबई है. बट बॉम्बे स्टेट में इफ़ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट डे, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र. उसको पहले बॉम्बे कहा जाता था. सो बेसिकली यहाँ पे दो लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं. One is Marathi speaking people and second is the Gujarati speaking people. Now, so सजेशन जा रहे हैं कि फॉर्म महाराष्ट्र एंड गुजरात. अब ये देखते हैं आगे क्या करते हैं. वेल, नाउ द ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ क्लास ABCD वर डिजोल्व. और बाद में जो ओल्ड क्लासिफिकेशन थी उसको हमने हटा लिया. Amendments were made in the first appendix of the Indian Constitution, and in place of the earlier classification, two parts were formed, comprising of the Constitution state and the Union territories. अब जो नई जो Constitution के हिसाब से हमने थोड़ा Constitution में बदलाव किया और इंडिया के कुछ नए स्टेट फॉर्म किए. How many states were formed? 14 states were included. मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ. आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. द यूनियन टेरिटरी इंक्लूडेड दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप. सो यू कैन सी 14 स्टेट्स हैं एंड 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप. ठीक है, तो ये हो गया. देखो, अब मुंबई नाम का एक स्टेट आपको दिख रहा है, तो उसमें गुजरात एंड महाराष्ट्र को उन लोगों ने अलग किया नहीं किया. अब देखो इसको ही लेके अब होगा बवाल. ठीक है, क्या बवाल होता है, लेट्स सी. फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट मेड 2 सेपरेट स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड गोवा, ऑन 1st May 1960. On 25th May 1960, reorganization of the Maharashtra as a state made its capital Mumbai, and 1st May 1960 is considered to be the foundation day of the Gujarat and is included with the region of the Saurashtra and Kutch. So finally डिसाइड किया गया कि इनको भी दो अलग अलग स्टेट कर देते हैं, एंड गुजरात एंड महाराष्ट्र अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं 1st May 1960 को. ओके, एंड सिंस महाराष्ट्र स्टेट था तो मुंबई को उसका कैपिटल बनाया गया. नाउ आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड वे रिकॉग्नाइज एज अ लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स. तो इन्हें हम लोग 7 बहनें कहते हैं, लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में आता है. नाउ देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेट स्मॉल स्टेट फ्रॉम द बिगर स्टेट. हमेशा एक बड़ा स्टेट होता है ना, उसका कोई ना कोई पार्ट बोलता है कि हमको एक अलग स्टेट बनाना है. अब सबकी डिमांड तो पूरी नहीं की जा सकती ना.
अगर हम लोग पास्ट में देखें, इन द ईयर 2000 झारखंड कैपिटल रांची वेर सेपरेटेड फ्रॉम द बिहार, छत्तीसगढ़ कैपिटल रायपुर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द मध्य प्रदेश, उत्तराखंड कैपिटल ऑफ देहरादून वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द उत्तर प्रदेश एंड रीऑर्गेनाइज ऑफ द स्टेट। अगर हम बात करें 2000 ईयर की, तो मध्य प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट था उसमें छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग हुआ एंड बिहार में से झारखंड स्टेट अलग हुआ। इनके भी अपने अपने कैपिटल है। अभी रिसेंटली कौन सा स्टेट बना है? वेल, इन 2014 तेलंगाना वॉज recognized as a separate state from आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश से एक नया स्टेट बना था, दैट इज कॉल्ड तेलंगाना ऑन 2 जून 2014। Even today, the demand of the various separate state has been going on, and the latest one is the Vidarbha region of the Maharashtra. सबसे अगर कोई फ्रेश एजिटेशन चल रहा है तो बड़े महाराष्ट्र स्टेट में चल रहा है। महाराष्ट्र स्टेट का जो विदर्भ एरिया है, सो दे वर डिमांडिंग द न्यू स्टेट। इन योर टेक्स्ट बुक द लाइन इज रिटन, currently Indian Union consists of the 29 states. And friends, remember, इन 29 स्टेट में आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर। सो अभी जस्ट 2019 5 अगस्त हम लोगों ने 370 आर्टिकल इम्प्लीमेंट किया था, और बाद में जम्मू कश्मीर से स्टेट से हम लोगों ने क्या किया, स्टेटहुडशिप ले ली। अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है एंड लद्दाख इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी। तो देखो, पहले हमारे पास 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, बट अब 28 स्टेट। अब आप बोलोगे सर 2 टेरिटरी बढ़ गई, हाँ, तो 7 से पहले 9 हुई, बट बाद में अंडमान निकोबार एंड दीव दमन को जो 2 अलग थे उनको सेपरेट कर लिया गया। सो इफ़ आई टॉक प्रेजेंट 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। लेकिन अगर आप ये 29 और 7 भी एग्जाम में लिखोगे तो मैं रॉन्ग नहीं करने वाला, क्योंकि हर कोई अपडेट अपने आप को नहीं रख सकता। एनी हाउ, सो मैं 29 स्टेट्स के नाम ले रहा हूँ। आपको इसके बाद आपको ये मैप तो दिख ही जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, okay, and Delhi and Jharkhand. Now 6 union territories: Chandigarh, Pondicherry, Lakshadweep, Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli, and 1 national capital Delhi. So अगर आप लोग ये मैप देखोगे, ओके, यहाँ पे तो हमारा सेशन एंड हो रहा है। एनी हाउ, सो ये है हमारा इंडिया, ओके। ऑन टॉप यू कैन सी श्रीनगर, और ये अपडेटेड मैप नहीं है। अपडेटेड मैप अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख 2 अलग अलग स्टेट सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बन चुकी है। यू विल फाइंड हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड इन ग्रीन, लाइट ब्लू हरियाणा, लाइट ऑरेंज राजस्थान। इन सेंटर यू विल फाइंड ब्राइट ब्लू मध्य प्रदेश, ऑन लेफ्ट यू विल फाइंड ग्रीन गुजरात, यू विल फाइंड पर्पल उत्तर प्रदेश, एंड ऑन राइट टू इट यू विल फाइंड ग्रीन बिहार, येलो झारखंड था, नीचे आते हैं अब हम लोग, ओके, ब्राउन उड़ीसा, देन ग्रे छत्तीसगढ़, अगेन ग्रीन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे अगर आप देखोगे तो स्मॉल लाइट ऑरेंज गोवा यू विल फाइंड, देन तेलंगाना इन ऑरेंज एज यूजुअल, कर्नाटक, देन यू विल फाइंड आंध्र प्रदेश, बॉटम you will find Kerala and Tamil Nadu. On Kerala's left you will find Lakshadweep, and on extreme right you will find Andaman and Nicobar Islands. Okay, so यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कभी किसी को समझ में नहीं आता है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. वेल यू विल फाइंड सिक्किम ऊपर से पिंक, ओके, एंड बिलो डेट यू विल फाइंड वेस्ट बंगाल. नाउ फ्रॉम दैट टॉप साइड अरुणाचल प्रदेश, एंड ऑन बॉटम यू विल फाइंड नागालैंड. उसके नीचे आपको मिलेगा मणिपुर, पिंक में आपको मिलेगा मिजोरम, लेफ्ट में आओ तो ग्रीन में मिलेगा त्रिपुरा, ऊपर जाओगे आपको ऑरेंज में मिलेगा मेघालय, एंड वन वेरी बिग स्टेट इज कॉल्ड आसाम. एंड हाँ, ऑफकोर्स हम अपने ये हरियाणा में देखो आपको दिल्ली दिखेगा, हरियाणा और यूपी के बीच में. सो ये है हमारा बेसिकली मैप. हाँ, अगर मैं यूनियन टेरिटरीज की बात करूँ तो देखो फ्रेंड्स, फॉर्मूला सिंपल है. 8 यूनियन टेरिटरीज आपको कैसे याद रखनी है? वेल पहले तो 2 आइलैंड है, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, 2 हो गए. थर्ड इज पौंडीचेरी, ओके.
यू विल फाइंड दीव दमन एंड दादरा नगर हवेली, ये फोर्थ हो गया. ओके. देन यू विल फाइंड दिल्ली एंड चंडीगढ़ 5 and 6, एंड जम्मू कश्मीर एंड यू विल फाइंड लद्दाख. सो ये 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई. एंड हर एक यूनियन टेरिटरीज के अपने कैपिटल्स भी होते हैं. सारी यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल चलते हैं. बाकी स्टेट में अपनी उनकी खुद की गवर्नमेंट होती है जो अच्छे से रन करते हैं. सो फ्रेंड्स, टुडे सेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग. हमने देखा कैसे पोर्टुगीज़ एंड फ्रेंच वो हमारे इंडिया को हमने उनको वापस से रिकैप्चर कर लिया. वी आर ऑल्सो सीन कि कैसे हम लोगों ने पहले स्टेट्स को अलग अलग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड देन उन स्टेट्स को फिर हम लोगों ने अच्छे से कैटेगराइज करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करके हमने उसको अलग से फॉर्म किया. स्टेट्स की डिमांड आती रहती है, बट हमको उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. सो फ्रेंड, विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ, एंड वी विल मीट इन द थर्ड पार्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग वन जहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी. ठीक है. सो बाय एवरीवन एंड टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे.